Good evening, everyone. Let's get started. The first word is inaugurate. It is basically verb. It means you begin or introduce something like system, policy, or a period. The first meaning is to introduce a new public official or leader at a special ceremony. The second is inaugurate something to officially open a building or start an organization with a special ceremony. Third one is to put someone into an official position with a ceremony. And the fourth one is to put something into use or action officially. When you initiate something, or you can say that you begin something, you start something, you commence something, then we use this word inaugurate. Sentences are he will be inaugurated as president in January. And the second one is the assembly was formally inaugurated in December. And the third one is the European community inaugurated the single European market in 1993. Synonyms are commence, launch, establish, or you can say that put in place, start off, get going, or start, commence, initiate, begin, institute. And antonyms are cease and finish. The linking word is inauguration. The next one is indigenous. Indigenous means when you are local, something is native, original, or you can say that ancient, then we use this word indigenous. It is basically adjective. The first meaning is belonging to a particular place rather than coming to it from somewhere else. You are not a foreigner, you are local, you are indigenous, you are native. And the second is naturally existing in a place or country rather than arriving from another place. Sentences are the kangaroo is indigenous to Australia. It means they are local to Australia. The second is are there any species of frog indigenous to the area? The third one is Navajo are among the indigenous people of North America. नॉर्थ अमेरिका में एक कबीला है जिसको नवाहू कहते हैं. Synonyms are native, aboriginal, local, original, domestic, native, or earliest, or you can say that ancient. You are not migrant, foreigner, alien. These are antonyms. The next one is judicious. It is also adjective. It means when you are careful and sensible, showing good judgment. And the second is having or showing reason and good judgment in making decision. When you are wise, you are sensible, or you can say that one word we have shrewd. It means you are clever. It is negative word, while judicious is positive word. When you can well advised or you can well judged, then we use this word judicious. Sentences are it is curable with the judicious use of antibiotics. And the second is some dishes would be very bland. इसका मतलब होता है tasteless हो जाना without the judicious use of spices and other seasoning. And the third one is we should make judicious use of the resources available to us. ये अपने पास सेव कर लें, आप इसको राइटिंग टास्क 2 में यूज कर सकते हैं. जब आपने रिसोर्सेज की बात करनी है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज किस तरह यूज करने चाहिए, इसका मतलब है वाइजली उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए. सिनोनिम्स है हमारे पास केयरफुल, सेंसिबल, वाइज, पॉलिटिक, प्रूडेंट, सेंसिबल, साउंड और वेल एडवाइज्ड, while antonyms are careless, reckless. The next word is lethargy. Lethargy आप काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड से रिलेटेड एसेज में. It is basically noun. It means the state of not having an energy or enthusiasm for doing things.
The second is the feeling of having little energy or of being unable or unwilling to do anything. It means you feel inactive, dullness, laziness. जब भी हम फास्ट फूड लेते हैं, फास्ट फूड का अगर जंक फूड से रिलेटेड आपने इसके प्रॉब्लम्स में लिखना हो, डिसएडवांटेजेस में लिखना हो, तो आप इसकी जो सेकंड पैराग्राफ में हम लिखते हैं ना, वहां पे आप कह सकते हैं कि लेथर्जी जो है ना अनदर कोजेंट रीजन कि हमें क्यों फास्ट फूड नहीं लेनी चाहिए, बिहाइंड द प्रोहिबिशन ऑफ, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट में। सेंटेंसेस है हमारे पास, द रिपोर्ट criticizes the lethargy shown by employers when it comes to job creation. The second is symptoms include loss of appetite, lethargy and vomiting. Synonyms है हमारे पास इसके dullness, inactivity, tiredness, fatigue, or you can say that enervate, tiredness, or you can say that passiveness, inactive, slowness, inaction. And antonyms है लिवलीनेस, ब्रूटैलिटी। आज हम इनका पैराग्राफ, इन 4 वर्ड्स को यूज करते हुए हम देखेंगे कि हम इनकी पैराग्राफ जो है ना फॉर्मेटिंग वो कैसे कर सकते हैं। इन रनिंग डेज in running days, people hope that the new government inaugurate a period of change. However, the lethargy of nation towards the economic condition suddenly vanished at the outbreak of the Civil War. To alleviate this problem, the president authorized the judicious use of military forces to protect our citizens, or you can say that netizens, इनमें से कोई एक यूज कर लें, and cultural norms. As other countries, we have our own indigenous cultural traditions. इन रनिंग डेज आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर जो लोग हैं वो उम्मीद करते हैं कि जो न्यू गवर्नमेंट आएगी, इनॉग्रेट करेगी अ पीरियड ऑफ चेंज, एक नया पीरियड लेके आएगी, चेंज लेके आएगी। हाउएवर द लेथर्जी ऑफ नेशन, लेकिन जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से नेशन का क्या है, सडनली वैनिश्ड, उनकी जो लेजीनेस है वो अचानक खत्म हो गई है, क्योंकि लोगों की आपस में वॉर स्टार्ट हो गई है, सिविल वॉर, एट द आउटब्रेक, फैल जाना। सिविल वॉर की वजह से लोगों के दरमियान जो लेजीनेस थी वो खत्म हो गई है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, ऑथोराइज किया कि मिलिट्री फोर्सेस को चाहिए कि वो जुडिशियस यूज करें अपनी फोर्सेस को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सिटीजन्स को, नेटिजन्स को, दोनों एक ही बात है, और अपनी वैल्यूज को, कि लोग आपस में अपनी वैल्यूज को मत भूलें।
ठीक है वो पॉलिटिकल व्यूज पे एक दूसरे से लड़ाई करें, जो भी इनके दरमियान डिस्प्यूट्स हैं वो उसको कंटिन्यू करें, लेकिन वो अपनी कल्चरल वैल्यूज को मत भूलें। जैसे कि दूसरे कंट्रीज की तरह आप यहाँ पे EM डैश लगा के बाकी कंट्रीज की एग्जांपल दे सकते हैं। चाइनीज वो बहुत ज्यादा है, इंडियन पीपल भी बहुत ज्यादा अपने जो है ना वैल्यूज को जेलसली गार्ड नहीं करते हैं। अब उनकी एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे हम सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, कम्प्लेक्स लॉन्ग करने के लिए EM डैशेस के जरिए हम इनक्लोजिंग डिटेल दे रहे हैं। अब हम यहाँ क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए प्रेसिडेंट ने ऑथोराइज किया है मिलिट्री फोर्सेस को कि वो वाइजली डिसीजन मेकिंग करें और अपने नेटिजन्स को भी जो है ना वो प्रोटेक्ट करें और अपनी कल्चर वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट करें, जैसे बाकी कंट्रीज करते हैं। चाइनीज है, इंडियन है हमारे पास, उनकी तरह हमारी भी अपनी इंडिजिनस का मतलब है लोकल, इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशनल्स, हमारी अपनी लोकल रवायात है। हमने पहला वर्ड किया था इनएग्रेट, नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास लेथर्जी, उसके बाद जो थर्ड वर्ड था वो था जुडिशियस, नेक्स्ट वन था इंडिजिनस। इस तरह हम इन 4 वर्ड्स को यूज करते हुए एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप लोग भी इस तरह इसको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करें। अब हम लोग इनके सिनोनिम्स लिखते हैं। सबसे पहले था हमारे पास इनएग्रेट, इसका क्या मतलब होता है, इनिशिएट करना समथिंग, इनिशिएट करना। टमाटर डाला आज। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास इनएग्रेट, इट मींस इनिशिएट करना, बिगिन, स्टार्ट, कमेंस और लॉन्च। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास इंडिजिनस। इंडिजिनस क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव है, इट मींस नेटिव, लोकल, डोमेस्टिक, एबोरिजिनल। आपको लोकल इस तरह की एक्सप्रेशन काफी यूज करने पड़ेंगे इंडिजिनस से रिलेटेड, अपने पास सेव कर लें। एंशिएंट, इसके अलावा इसका आप अर्लीस्ट भी कह सकते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे पास जुडिशियस। जुडिशियस कहते हैं वाइज, सेंसिबल, पॉलिटिक, प्रूडेंट, या आप इसको कह सकते हैं साउंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल जज्ड। लास्ट वर्ड था हमारे पास लेथर्जी। लेथर्जी का क्या मतलब होता है, इनएक्टिविटी, इनएक्टिव हो जाना। लेजीनेस, या आप कह सकते हैं टायर्डनेस, स्टैग्नेंट हो जाना, स्टैग्नेशन, ये भी हमारे पास है। ये बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए।
इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना वो इतनी खराब हो जाती हैं, स्टेगनेंट हो जाती हैं, एक जगह पे रुक जाती हैं, तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेगनेशन। ये बेसिकली जितने भी शन वाले वर्ड होते हैं वो मोस्टली नाउन होते हैं, ये भी नाउन है, स्टेगनेंट, स्टेगनेशन। उसके बाद है हमारे पास आइडलनेस। ये हो गए आज के हमारे 4 वर्ड्स। जो आज हम फ्रेजल वर्क करेंगे वो है आउट ऑफ द ब्लू। ये आपने स्पेसिफिकली स्पीकिंग के लिए यूज करना है, ये आपने राइटिंग में यूज नहीं करना। जो मैंने ऊपर आपको सारे वर्ड्स करवाए, जो पैराग्राफ करवाया, वो बेसिकली राइटिंग के लिए था। ये इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल आप कभी भी राइटिंग में यूज नहीं करेंगे। आउट ऑफ द ब्लू जो है, ये इस तरह के एक्सप्रेशंस हमें स्पीकिंग के लिए ना सूटेबल है। हमें चाहिए कि इन वर्ड्स को हम स्पीकिंग में यूज करें, जैसे फ्रेजल वर्ब हो गए, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हो गए, आप ये 2 to 3 एक्सप्रेशंस जो है ना वो यूज करने हैं। आउट ऑफ द ब्लू इसका क्या मतलब है, विदाउट वार्निंग। Suddenly. You can say that, unexpected. Yes, suddenly. अब आप इसके जो सेंटेंसेस है वो कैसे बनाएंगे। द सन क्लियर्ड आउट ऑफ द ब्लू स्काई। जो आप यूज कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं जो अचानक आ जाए। शी अराइव्ड आउट ऑफ द ब्लू, किसी का अचानक आ जाना, आप वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। काशिफ कैमरा बंद करें। थर्ड वन आप इसको यूज कर सकते हैं, हिज रेजिग्नेशन केम राइट आउट ऑफ द ब्लू। अचानक से किसी का रिजाइन कर जाना, या ये भी कह सकते हैं समटाइम आप एक्साइटेड होते हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि कंप्लीटली आप अनएक्सपेक्टेड फील कर रहे होते हैं whenever you got a letter from your long lost cousin, जो आपका कोई फैमिली मेंबर कोई भी आउट ऑफ कंट्री हो, वो आपको लेटर भेजे, वो अनएक्सपेक्टेड, इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं आउट ऑफ दी। इसका सेंटेंस ये बन सकता है, my father announced a family trip out of the blue. यस, ओके, एक दफा मैं रिवाइज कर देती हूँ। जो आज का हमारा लेक्चर था बेसिकली उसमें हमने 4 वर्ड्स को डिस्कस किया, इनैगुरेट को किया, लेथर्जी को किया, जुडिशियस को किया, इंडिजिनस को किया। इनैगुरेट हमने कहा कोई भी आप चेंज लेके आना चाह रहे हो, कोई स्पेसिफिक सेरेमनी हो सकती है, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप इनैगुरेट करते हैं, वो आप सेरेमनी के तौर पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। लेथर्जी का मैंने आपको बताया बेसिकली लेजीनेस से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, आप इसको फास्ट फूड के ऐसे में ज्यादा यूज कर सकते हैं। जो सेकंड कमांड है वहां पे आप इसको सेकंड रीजन के तौर पे दे सकते हैं, वहां पे मेंशन कर दें। इसके अलावा जब आप लेजीनेस से रिलेटेड की बात करना चाहें वहां पे आप लेथर्जी का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने थर्ड डिस्कस किया था जुडिशियस। जुडिशियस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, बेसिकली जुडिशियस डिसीजन मेकिंग है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज है। ऑर्गेनाइजेशंस को, अथॉरिटीज को चाहिए कि वो जुडिशियस यूज करे रिसोर्सेज को। इंडिजिनस का हमने कहा था कि लोकल, नेटिव, कुछ ऐसा जो डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक पीपल हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती है, ये एडजेक्टिव है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जो हमने पैराग्राफ लिखा इसमें यह था कि आजकल क्या हो रहा है, लोग उम्मीद करते हैं कि जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो चेंज लेके आएगी, लेकिन वो नहीं ला सकी, तो फिर क्या होगा कि जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है ना, इसकी वजह से वो जो लेजीनेस फील कर रहे थे वो अचानक खत्म हो गई है, और वापस में उनके दरमियान इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, सिविल वार जनरेट होगी। इसको हमने क्या कहा, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया मिलिट्री फोर्सेस को कि वो जुडिशियस यूज करें रिसोर्सेज को, और अपने नेटिजन्स को या सिटीजन्स को अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करें, जैसे बाकी ममालिक करते हैं। जैसे हमारे पास चाइनीज है, इंडियंस है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी भी अपनी बाकी कंट्रीज की तरह अपनी वैल्यूज हैं, आप भी इसको डिफरेंट अपने सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करें। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था आउट ऑफ द ब्लू।
ये हमने इडियोमैटिक एक्सप्रेशन किया, कुछ ऐसा जो अचानक हो, अनएक्सपेक्टेड हो, विदाउट वार्निंग हो। आप किसी का आ जाना, किसी का रिजाइन कर देना, किसी का अचानक से आपको मिल जाना, तो ये हमारे पास क्या होगा, आउट ऑफ द ब्लू। उसके अलावा अब हम थोड़े से वर्ड्स रिवाइज करते हैं। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जो आप जो अभी से सारे वर्ड्स करवा रही हैं ना 201 से लेकर 240 तक, इनके सिनोनिम्स लिखवा दें, वो हमारे लिए और इजी हो जाएगा वर्ड की फाइल में। तो मैं डेली आपको रिवाइज करती हूँ, अपने पास हाँ रिवाइज तो करवा रही है, लेकिन मैं कह रहा था कि इस तरह कर ले तो ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। चले 250 कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर मैं एक दिन आपको करवा दूंगी। आपने इसके सिनम्स याद नहीं करने, आपने इसके अच्छा फ्रेजेस याद करने हैं। ओके हाँ, सिनोनिम्स तो ठीक है। याद करने का आपको कोई फायदा नहीं, आप सिंपल भी कर सकते हैं, तो वो नहीं करना आपने। आपने इनके फ्रेजेस याद करने हैं, आपने इसका बस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग याद रखना है कि जब आप राइटिंग में यूज कर रहे हो तो आपने सिंपल वर्ड थोड़ी लिखने हैं, आपने तो इनको यूज करना है। और आप इनको यूज तब कर सकते हैं जब आपने इनके फ्रेजेस याद किए होंगे। जैसे ऑब्जेक्ट पॉवर्टी है, ऑब्जेक्ट फेलियर है, ऑब्जेक्ट मिस्टेक है। इस तरह जब आप कभी भी मिस्टेक की बात करने लगेंगे, आपके माइंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर आप अगर फेलियर की बात करेंगे तब भी आपके माइंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं लाइफस्टाइल की बात करती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो लीड क्लास के, वो क्या चाहते हैं, ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो फ्लॉन्ट कर सकते हैं, टेम्प्ट कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं। अब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो डिफरेंट वर्ड्स यूज करेंगे। इस तरह आपने इनके सिनोनिम्स नहीं करने। मैं आपको 250 कंप्लीट होता है मैं साथ लिखवा दूंगी, लेकिन हमेशा इनको फ्रेजेस में याद करें। ना आपने इनके उर्दू मीनिंग्स करने हैं, ना आपने इनके सिनोनिम्स करने हैं। इनको बेसिक आपको ओके डेली मैम क्लियर है। रिवाइज करवाने का पर्पस ही यही है कि आपको ये वर्ड्स याद हो जाए, और आप जब इनको अपनी राइटिंग में यूज करें तो वो कॉलोकेशन एरर ना हो। हमारे पास फर्स्ट वर्ड था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी है, ऑब्जेक्ट फेलियर है, ऑब्जेक्ट मिस्टेक है। हमारे पास अस्पिशियस मीटिंग हो सकती है, अस्पिशियस साइन, कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन आना। अबॉर्टिव, अबॉर्ट का मतलब होता है मिशन अनसक्सेसफुल हो, फेलियर। ये आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में हम ज्यादा यूज करते हैं, मिशन अबॉर्ट। एवरेज का मतलब होता है चीजों को समराइज कर देना, शॉर्टन कर देना, टोटल कर देना, उसका एग्रीगेट कर देना। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या है, कंप्लीट, इंटायर। एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है हमारे पास, जैसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी है अल्लाह ताला की। बिक्वेस्ट है किसी के मरने के बाद उसकी मनी या प्रॉपर्टी उसके दूसरे लोगों को ट्रांसफर हो जाए, यानी कि इनहेरिटेड मनी या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, वो क्या है, बिक्वेस्ट। बिरीव्ड होता है, बिरीव्ड हम यूज करते हैं बिरीव्ड फैमिलीज, बिरीव्ड कोलीग्स, बिरीव्ड फ्रेंड्स। किसी के मरने के बाद जो बाकी लोग उसके लिए गमजदा होते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, बिरीव्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लैटेंट, खुलम खुला, वाजिया। ये दो चीजों में हम यूज करते हैं, ब्लैटेंट लाई, ब्लैटेंट अटेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लाइट। ब्लाइट क्या होता है, फलों का खराब हो जाना। लेकिन किसी चीज का किसी दूसरी चीज पे नेगेटिव इंपैक्ट हो तब भी हम यूज करते हैं ब्लाइट शेडो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिकॉलिक। बिकॉलिक क्या है, विलेज लाइफ से रिलेटेड है। बिकॉलिक सीन्स के साथ हम यूज करते हैं। कैटलिस्ट, किसी पर्सन की क्वालिटी के लिए जो एज अ लीडर रोल प्ले कर रहा हो तो हम कहते हैं उसको कैटलिस्ट। और केमिकल रिएक्शंस में भी हम इसको यूज करते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाए किसी दूसरे केमिकल की एडिशन की वजह से, तो क्या रोल प्ले करेगा, कैटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल होता है क्लियर, ऑब्वियस। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हो सकती है, इसको हम एज अ एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, कैटेगोरिकल अश्योरेंस है हमारे पास, कैटेगोरिकल डिनायल हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैथलिक। ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखता हो उसके लिए भी हम यूज करते हैं कैथलिक। ये स्पीकिंग में आप काफी यूज कर सकते हैं किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्यू कार्ड में। सेरिब्रल होता है कि आप इमोशनली नहीं सोचते, ब्रेन थिंकिंग करते हैं। कॉलरिक, कॉलरिक कहते हैं ऐसे पर्सन को जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जल्दी गुस्सा करता हो। डेसिमेट होता है मैसिव किलिंग। ये प्लांट्स की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है। डेसिमेट। डिफरेंस है कि हम किसी इंसान मैडम ये एक्सक्यूज मी मैडम, जी जी, ये सेरिब्रल को यूज करके बताएं प्लीज। सेरिब्रल थिंकिंग होती है, सेरिब्रल पोएट्री होती है।
ठीक। ये देखें, रिलेटेड टू ब्रेन, आप जो है ना रिलेटेड टू माइंड रादर देन फीलिंग, आप इमोशनली हो रहे, आप माइंड जो है ना उसको यूज कर रहे हैं। डिमांडिंग और इन्वॉल्विंग, केयरफुल थिंकिंग एंड मेंटल एफर्ट रादर देन फीलिंग्स। अब इनको जैसे पोइट्री के साथ ही यूज हुआ है। सेरिब्रल, शी मेक्स सेरिब्रल फिल्म्स, यानी कि इमोशनल मूवीज नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, मेंटल एफर्ट को यूज करते हुए मूवीज बनाते हैं जो डील करती हैं इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज के साथ। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं रिलेटेड टू माइंड, इंटेलेक्चुअल, ब्रेनी, इस तरह। गॉट इट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट था हमारे पास, नेक्स्ट वन इज डेफरेंस। डेफरेंस मींस यू गिव समवन रिस्पेक्ट, क्योंकि वो आपसे एज में बड़ा है, या वो एक्सपीरियंस्ड है, या उसके पास आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज है, तो आप क्या यूज करेंगे, डेफरेंस। डेक्रस मींस सिविलाइज्ड। डिस्पोंडेंट, इट मींस डिसअपॉइंट, आप पीक लेवल पे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कोई आपको होप का सीन नजर नहीं आता, सब कुछ खत्म, हर चीज फेलियर आपको फील हो रही होती है, कोई उम्मीद का साइन बाकी नहीं होता। डाइग्रेस, डाइग्रेस का मतलब होता है भटक जाना, गुमराह हो जाना। इक्विविकल, इक्विविकल में आप इस फोटो से देख सकते हैं, आपको बेसिकली फोटोज का पर्पज ये है कि आप लोगों को ना माइंड में याद रहे, कहीं सुनने से हो जाए, बोलने से हो जाए, इस अलावा इमेजेस देखें तो उनसे भी आपके माइंड में ये चीजें ना रहें, कहीं ना कहीं से आप सुने, लिखें या पढ़ें तो आपके माइंड में ये चीज स्टोर हो। इक्विविकल से आप देखें, यहाँ पे अनक्लियर है कि ये फीमेल खड़ी है या कोई बाबा जी है या यहाँ पे कोई मेल है, इक्विविकल अनक्लियर है, ऑब्वियस एम्बिगुइटी है इसमें। एंडेमिक, एंडेमिक का जो वर्ड है ये आप यूज करेंगे करप्शन के साथ, कोई ऐसी बैड कंडीशन हो सकती है जैसे करप्शन है, इसके साथ यूज करेंगे, या कोई पर्टिकुलर डिसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में, कंट्री में हो सकती है, किसी खास इलाके में हो, तो वो क्या होगी, एंडेमिक। पेंडेमिक जैसे कोविड है, पूरी दुनिया में फैल जाना। इनॉर्मिटी का मतलब होता है स्फीयर, इनॉर्मिटी पेन के साथ हम यूज करते हैं। इलोसिव, इलोसिव भी हम अनक्लियर की सेंस में यूज करते हैं। ईसोटेरिक, ईसोटेरिक का जैसे मैंने आपको बताया था, ईसोटेरिक स्माइल ऑफ मोनालिसा, ये आपकी आर्ट्स की रीडिंग के पैसेजेस में यूज हुआ है। ईसोटेरिक का मतलब है ऐसी चीजें जिसका समझने वाले या जिसका इंटरेस्ट रखने वाले बहुत से लिमिटेड लोग होते हैं, हर किसी को इसकी समझ नहीं आती। फेलिसिटी का मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस। फ्लॉन्ट क्या है, फ्लॉन्ट होता है शो ऑफ करना। फरवा, इसका मतलब होता है इंथुजियाज्म, आप ज्यादा पीक पे एक्साइटेड फील कर रहे हो। फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल क्या होता है, भाईचारा, ब्रदरहुड, सिस्टरली, इस तरह आप इसको यूज करते हैं। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल काफी जगहों पे टास्क 2 में आप यूज कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, अथॉरिटीज क्या करती हैं, स्टेप्स लेती हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो अथॉरिटीज की एफर्ट्स होंगी इट वुड बी फ्यूटाइल, वो बेकार जाएंगी, यूजलेस, वर्थलेस। फ्यूटाइल एफर्ट्स के साथ हम यूज करते हैं। यॉनरा, ये बेसिकली लिटरेचर के साथ है, हम क्लासीफाई कर देते हैं, हम कैटेगरीज बना देते हैं लिटरेचर की। हेरारकी, हेरारकी क्या होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, आप हेरारकी डिजाइन कर देते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाइपोथेटिकल, कुछ ऐसी चीज जिसको हमने अज्यूम किया हो, आइडिया हो हमारे पास, लेकिन इंपीरिकली वो प्रूव ना हो, जैसे इंपीरिकल एविडेंस ना हो हमारे पास। आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी है नजरियात होना, सेट ऑफ आइडियाज। इडलिक, इडलिक मैंने आपसे कहा था, ये स्पीकिंग में काफी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। इडलिक एटमॉस्फेयर हो सकता है, इडलिक प्लेस हो सकती है, आपका कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे इडलिक चाइल्डहुड, बचपन का एक एक्सपीरियंस ही है ना, अब आपकी लाइफ वहां से गुजर चुकी है, आप यंग है। इडलिक चाइल्डहुड के साथ आप यूज कर सकते हैं। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है अनबायस्ड हो जाना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चले जाना, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारे पास तो यहाँ हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, इम्पार्शियल होते हैं, कोई फेवरेटिज्म नहीं चल रही। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है वीक। इनएगुरेट का मतलब होता है, बताएं आप लोग जी, मोहसिन हसीब, इनएगुरेट। Ma'am, can I tell? श्योर।
to put something into use or action officially. उर्दू में हम बोलते हैं इसको इफ्तिताह करना. I was present at my father's new office's inauguration. गुड एफर्ट. ऐसे सेंटेंस आपने इसको प्रॉपर यूज नहीं किया लेकिन अच्छा था, अच्छी एफर्ट थी. उसके अलावा Initiate करना, open करना, begin. यस, कमेंस, स्टार्ट. काशिफ, इंडिजिनस. It's local, it's traditional culture, primitive, such like that. लोकल, नेटिव, डोमेस्टिक, एबोरिजिनल. Domestic, यस. aboriginal. सिदरा, जुडिशियस. Judicious, Wise, prudent, sound, well versed. गुड. The judicial system of Pakistan needs to be improved. एग्जैक्टली. That's not. लेथर्जी, जी फाइजा. ma'am, susti, inactive, dullness, लेजीनेस. अज़का, इम्पोर्टेंट. ma'am, unsuccessful, unbased, like neutral. Oh, sorry, weak. Yes, we good. Sayyid Farhan Shah, impartial. Yes, ma'am. Impartial. Ma'am, incomplete. Anything which is not completed, partially done or partially not done. We are using in the Impartial mean unbiased. गुड. काशिफ ने ठीक बताया. अनबायस्ड होना. मैंने यहाँ पे यूज भी किया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. हम वो डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं कर रहे, कोई फेवरेटिज्म नहीं कर रहे, कोई बायसनेस नहीं कर रहे. हम क्या है? अनबायस्ड, इम्पार्शियल. किसी साइड पे आप नहीं जा रहे, जानिबदार हो जाना किसी साइड पे नहीं है. आप सिंपली अनबायस्ड है, कोई फेवरेटिज्म कुछ भी नहीं कर रहे आप. Taking no sides of anyone. यस. ओके. उस्मान, illicit. Not allowed by law. Yes, illegal. Idlik. Sajid. Idlik. Eh? Idyllic atmosphere, idyllic childhood, the thing which remain in memory, and you make it idealize. That is idyllic. Yes. इसके साथ में आपको मेमोरी से याद है, मैं आपको बताती हूँ नॉस्टैल्जिया. ये भी हमारे पास एक वर्ड है कि आप नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होते हैं अपने स्कूल डेज से. आपने किसी जगह को विजिट किया, जैसे हमने डिस्कस किया था रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. इस तरह आप वर्ड यूज कर सकते हैं नॉस्टैल्जिया. उसके बाद हैदर, आइडियोलॉजी. हैदर. Having a set of ideas. Good. Zainab, indigenous. Native, local.
Zainab. Judicious. Zainab Aziz. I think Zainab क्लास में नहीं है. उमर आप बताएं. Yes, ma'am. Judicious. Ma'am, wise, sensible, well judged. Okay. Azka. Lathar. मैम ये जी जी. मैम ये इसमें प्रूडेंट यूज किया आपने, इसका बताया था, तो प्रूडेंट को किस तरह हम यूज करेंगे? मैंने क्या बताया था? ये जुडिशियस में आपने प्रूडेंट भी इसका बताया था कि प्रूडेंट भी होता है. ये इसका देखें, कुछ सिनोनिम्स होते हैं हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं, ठीक है, हम उनके मीनिंग पे इसका जो यूज कर सकते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग वहां पे एग्जैक्ट मीनिंग वो यूज नहीं कर सकते. वाइज, सेंसिबल, ये तो हो गया. प्रूडेंट भी बेसिकली एडजेक्टिव है. इसका मतलब है आप एक्ट कर रहे हैं, जो शो कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं इसके बारे में. वाइज, वेल जज्ड, ये भी इससे रेलिवेंट है, लेकिन आप इसके रिप्लेसमेंट में यूज नहीं कर सकते. Acting with or showing care and thought for the future. अब ऐसे है नहीं, लेकिन शो करें कि आपको बड़ी फिक्र है, इस तरह का ना. जी इसका लेथर जी. Ma'am, inactivity, laziness, like dullness, Tiredness. Good. loss of energy, not doing it. Yes. बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो? No, ma'am. Okay, students. Allah Hafiz. Goodbye.